और WH की sentences. Neha, what was the last interactive sentence? The last interactive Anita sentence. ji, what was The the last, last the last interactive sentence was the power is cut. I think. Sorry. Sorry. Here we go. Okay, Neha, mute yourself. Anita ji, what was the last interactive sentence? Rosni, what was the last interactive sentence? The last interactive sentence was anyways. Sorry. Sorry, The please last complete it. the last interactive sentence was anyways. This is the last second interactive. Last 2 seconds. हिंदी भी बोलना है. Firstly, you have to complete your interactive sentence. It is second last. You can First is ask rest to and last is rest. Neha, uh, who is ready for answer? I'm ready. Come. Namrata, what was the last interactive sentence? Nidhi, the last interactive sentence was let's dance on the floor. That is, चलो फ्लोर पर डांस करते हैं. Anita ji, what was the last interactive sentence? Last interactive sentence is let's dance on the floor. चलो डांस करते हैं. वैसे मैं कल की क्लास में नहीं थी, कल क्लास हुई थी. But this interactive sentence sir has given in 5 October ना 5 या हाँ 10 2021 या हाँ ये क्लास अटेंड की थी मैंने, ये वाले जो सेंटेंस था. ओके. So good morning. Complete the process, Anita ji. को हिंदी में बोलना है ना. भूल गए, आप बता दीजिए क्या Call करना to है. any name. Call any name. कौन है यहाँ पे. Okay, who is ready? रोशनी. I am ready. Let's dance on the floor. चलो डांस करते हैं. रोशनी दी. Sorry, Neha. Come again. Sorry for Hindi, Neha. चलो डांस करते हैं. Sorry for Hindi, Neha. Dance on the floor. चलो चलो डांस करें. Sorry, दी. Neha. चलो डांस. चलो डांस करते हैं, यही होगा ना. भूल गई मैं हिंदी. नम्रता, अपन लाइन बाय लाइन बोल लेते हैं इसको ना. आप बोलिए इंग्लिश एंड हिंदी, फिर देन. Okay, हाँ, it will do. Let's dance on the floor. चलो फ्लोर पर डांस करें. निधि. Let's dance on the floor. चलो, that is चलो फ्लो पर डांस करें.
रोशनी। लेट्स डांस ऑन द फ्लोर, चलो फ्लोर पर डांस करते हैं। नेहा। लेट्स डांस ऑन द फ्लोर, दैट इज चलो फ्लोर पर डांस करते हैं। निशा दी। लेट्स डांस इन द फ्लोर, चलो फ्लोर पर डांस करते हैं। अनीता जी। लेट्स डांस ऑन द फ्लोर, चलो फ्लोर पर डांस करते हैं। अब कौन बचा? Okay, I am ready. Nidhi, what नम्रता। was the last idiom? Roshni, what was the last idiom? The last idiom was your days are numbered. Sorry, Roshni. Nidhi, what was the last idiom? The last idiom was don't uh, don't poke your nose into others matter, that is दूसरों के दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, टांग मत अड़ाओ। Who is ready for answer? I am ready. Actually, Nidhi, it was the last, second last idiom. What you Oh, speak? Yeah, I forgot. Namrata, please tell me. yeah. You can ask me. Namrata, what was the last idiom? The last idiom was a word to the wise. That is, समझदार को इशारा ही काफी होता है। रोशनी। रोशनी, unmute yourself. निधि। A bird. निधि, लाइन वाइज लाइन कर लेते हैं। A bird to the wise. समझदार के लिए इशारा ही काफी है। नेहा। A word to the wise, दैट इज समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अनीता जी। Sorry, वर्ड Neha. टू। Please call anyone. अनीता जी को सुनने दीजिए थोड़ा ओके। बहुत। निशा दी। A word to the wise, समझदार को इशारा ही काफी होता है। रोशनी। Come again. A word, Come again, Nisa ji. a word to the wise, समझदार को इशारा ही काफी होता है। रोशनी। A word to the voice, समझदार को इशारा ही काफी होता है। अनीता जी। अ वर्ड टू द वॉइस, समझदार को इशारा ही काफी होता है। अब निधि। I think all are done. यस। Nidhi, what was the last second interactive? The last second interactive sentence was anyway, anyway, anyways. Come to the point. That is खैर, बहरहाल, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। रोशनी। The last second interactive sentence was anyways, any was, come to the point. That is क्या है? खैर बहरहाल मुद्दे की बात पर आए।
नेहा, The last the last second interactive sentence was anyway, anyways, that is खैर बहरहाल मुद्दे की बात पर आइए निशा दी Sorry, Neha. Complete your English sentence. the last second interactive sentence was anyways that is खैर बहरहाल मुद्दे के बात पर Sorry. आइए Sorry, Lastly, Neha. lastly is missing, Neha. You forgot. Yeah, you should complete the sentence, English sentence. the last interactive sentence is was anyways Neha, okay uh, complete. uh, Please complete. खैर बहरहाल यही तो इसका Who is ready for answer? sorry I forgot I'm ready. Uh, the last interactive sentence was anyway, any was wrong. Okay. Come again. फिर से बोलिए अनीता जी. Uh, the last interactive sentence was second last interactive sentence was anyways, any was uh, खैर बहरहाल एंड मुद्दे की बात पर आए आई थिंक इनकरेक्ट करेक्ट है कि नहीं पता नहीं Okay, I am rest. Anyway, anyways, come to the point. खैर बहरहाल मुद्दे की बात पर आइए. Okay, repeat Anita ji. Anita ji, repeat it. एक एनीवेज एनी वॉज कम टू द पॉइंट खैर बहरहाल मुद्दे की बात पर Sorry, है sorry for अच्छा English. फर्स्ट ओके कम अगेन आप रिपीट कर दो एक बार फिर से Please listen Neha, carefully, राइट huh? Please. and please read the caption also, ओके who is mentioned below. You should read the caption and then you will get right spelling and then pronunciation also. Neha, could you repeat? Could you one more try? uh, anyway anyway come to the point खैर मुद्दे के बात पर आओ आइए So there you are, am I Neha. right okay निशा दी The second interactive sentence was anyway, anyways, come to the point. खैर बहरहाल बहर मुद्दे की बात पर आइए. Hmm, रोशनी. Sorry, Neha. Anita ji is rest. Anita ji, it's your goes. The second last interactive sentence was uh, anyways any was come to the point Sorry, Anita ji. Sorry, Anita ji. anyway You- anyways come to the point बहरहाल खैर मुद्दे की बात पर आओ So there Anita you are. ji, I you think she didn't listen carefully, na? मे बी
मुझे ही बोलना है फिर से? Yes, you can repeat with me. Okay. Anyway, एनी anyways, अच्छा, एनीवे, anyway, anyways. Come to the point. Okay. जाइए. एनीवेज कम टू द पॉइंट. So there you are. Namrata, do we play with WH word? How? Yeah, sure. है You ना, should लाइन बाय start. लाइन. Yeah. ओके. Namrata, how can you make sandwich? Nidhi, I can make sandwich so-so. नम्रता, आप सैंडविच कैसी बना लेती हैं? निधि, मैं सैंडविच ठीक ठाक ही बना लेती हूँ. रोशनी, how you can perform a dance? Sorry, How जी, can you कम. dance? Okay. How can you beautify yourself, Roshni? yes, I can beautify yourself. Sorry. सॉरी. Myself in beauty parlor. रोशनी, आप अपने आप को सुंदर कैसे बना सकती हैं? सॉरी नम्रता फॉर हिंदी. आप खुद को no, beta, it is सुंदर it कैसे is बना लेती हैं या बना सकती हैं? okay. I'm giving this answer behalf of Roshni or any female. Well, Namrita, I can beautify myself by putting, applying eyeliner, kajal, eyelashes, and making my eyebrows, and using L18's lipstick, and by using some foundation firstly on my face, and sometimes by peeling, using the peeler, ready-made peelers of different companies every Saturday or Sunday. Peeler is a kind of, you can see, Ubtan. Earlier we used to use besan ka Ubtan, but nowadays peelers are available in the market, ready-made. Just tear the packet and use the face mask or peeler. So by using all this and taking healthy food, I can beautify myself. Now don't ask me Hindi. सर यू नो ऑल थिंग्स. Beta, even before marriage, I used to know all these things. Actually, it is a part of awareness and knowledge. When I was not married, I used to take my younger sister, she is 5 years younger to me, and was only one beauty parlor in Jabalpur, good beauty parlor near Jyoti Talkies, in front of Jyoti Talkies, and it was run by Tibbeti ladies, or generally we used to say Chinese ladies. And the name of the beauty parlor was Blue something. I forgot because so many years passed. So I used to take my sister to that parlor sometimes for eyebrow making and blah blah. So I was having Bajaj scooter Priya blue color.
So I used to sit outside because gents were not allowed inside the parlor. So I did not used to waste my time, and I used to read every line written on the glass of beauty parlor outside. And sometimes on the way there, I used to ask my sister, what is the meaning of bridal makeup? What is the meaning of pedicure? What is the meaning of manicure? So she used to tell me everything because I was curious. Curious word is on your screen. Curious means जिज्ञासु, and जिज्ञासु means जानने का उत्सुक. जो जानने का उत्सुक होता है वो चीजों को देख कर सीखता है. एंड हमने ये आंसर दो कारणों से दिया बेटा, निधि एंड नम्रता. एक कारण ये था कि मैं यहाँ मौजूद सारी महिलाओं को शर्मिंदा करना चाहता था कि अभी, बल्कि देखिए वैसे नहीं, वैसे शर्मिंदा करना नहीं, जानकारी के मामले में. अभी मैं नेहा से 2-4 सवाल पूछ लूंगा. नेहा इज यंग. बेटा बताओ आई लैशेस कैसे अप्लाई करते हैं? Sir, I'm not using. यस. तो अगर 2-4 सवाल मैं आप सबसे पूछने लग गया तो आपको बहुत गिल्टी फील होगा. तो कोई, आई डू नॉट यूज पेडिक्योर, मैनिक्योर एंड ऑल, but I know what is manicure, what is pedicure, how to apply eyelashes, because I see TV programs and I know how to apply. There is a plucker, a special plucker, which we use to apply eyelashes. मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद नेहा को eyelashes पता भी नहीं होगा. नम्रता, do you know? Yes, sir, I know it. So how to apply eyelashes? Sir, actually, with the help of glue, we can apply. Yes, it is called loop. 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 Right? Yeah. Okay, thank you. Okay, let's come to the Points. Thank you for completing my incomplete sentence. Okay. रोशनी पटेल लेफ्ट. कितनी सारी इंग्लिश तो ये गूगल मीट ही सिखा देता है बेटा. चलो एक राउंड खेलते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ नम्रता. हु जस्ट लेफ्ट? Rosni has left. Rosni has just left. Rosni just left. अभी अभी कौन गया? अभी जस्ट अभी रोशनी गई. फिर से सुनना हिंदी बेटा. अभी अभी कौन गया? अभी अभी रोशनी गई. निधि, who left just class? Who just Sorry. left class? Rosni, who? Sorry, Nidhi. Nidhi, who just left class? Sir, a class नहीं ऐड करना. Okay. Who just left? It will do. It will do. Okay. Namrata, Rosni left. Rosni just left the class. Okay. अभी अभी क्लास छोड़कर कौन गया? नम्रता, रोशनी गई अभी अभी क्लास छोड़कर. रोशनी, who just left the class? They left the class. मैं अपना ही नाम ले दूं? Sorry, no. Sorry for mistake. You are right. Come again, please. They left the class. They just left the class.
ओके रोशनी, अभी अभी कौन गया क्लास छोड़ के? अभी अभी वे क्लास छोड़कर गए हैं। नेहा, क्वेश्चन निधि दीदी, क्वेश्चन कम। Try again, please. नेहा left the class. You are answering. I don't know, निधि दीदी. Okay. Who is ready to answer? Okay, Neha, who just left the class? नहीं दीदी, she just left the class. नेहा, अभी अभी क्लास छोड़ के कौन गया? वह अभी अभी क्लास छोड़कर गई है। रोशनी दी, who just left the class. You just left the class. रोशनी दी, अभी अभी कौन गया है? तुम अभी अभी क्लास छोड़कर गई हो। नम्रता दीदी, who just left the class? I'm done. Sorry. I'm done, Roshni. निशा जी, who just left the class? शिवांग just left the class. अभी अभी क्लास छोड़कर कौन गया है? शिवांग अभी अभी क्लास छोड़कर चला गया। अनीता जी, who just left the class? Sir just left the class. सर अभी अभी क्लास छोड़कर चले गए हैं। Who is rest? All of them. Could you please ask me? हाँ जी, Anita ji, Neha is rest. Okay. Nisha is rest. who is the who just the left class, right? Who is Come again, अनीता जी. who just left the class? अभी अभी क्लास To whom you are asking, Anita ji? To whom you are asking? समझ नहीं आया। इन्होंने जो बोला उसका हिंदी है। आप किससे पूछ रही हैं, क्योंकि आपने संबोधन दिया ही नहीं। ओके, निशा, निशा, who just left the class? शिवांग just left the class. अभी अभी क्लास छोड़कर कौन गया? शिवांग अभी अभी क्लास छोड़कर चला गया। नेहा, who just left the class? Student just left the class. अभी अभी क्लास छोड़कर चला गया। स्टूडेंट अभी अभी क्लास छोड़कर चला गया। Who is rest? रोशनी दी, who just left the class? Neha, I think all are done. Done. Okay, it will do. दोस्तों, कितनी अच्छी बात है
आप इससे रियल इंग्लिश सीख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ आता है। और भी ऐप हैं जिसमें और क्लास वाले अपनी क्लास लेते हैं, जैसे जूम या बाकी का नाम मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो फैसिलिटी है, ये जो आपकी स्क्रीन पे पूरा लिखा हुआ आ रहा है, 3 बिंदुओं को दबा के सीसी ऑन कर लीजिए। सीसी का फुल फॉर्म नीचे उसी के नीचे लिखा रहता है, शो कैप्शंस। तो ये जो नीचे लिखा आता है इनको अंग्रेजी में कैप्शंस कहते हैं, हिंदी में पता नहीं है। तो 3 बिंदु दबाइए और कैप्शंस ऑन कर लीजिए, तो पूरा इंग्लिश लिखा हुआ आ जाता है। अब सोच के देखो दोस्तों, हम ऐसी इंग्लिश हमें सिखाई गई कि कोई चला गया तो हम हमेशा गो बोलते थे या वेंट बोल देते थे सेकंड फॉर्म, है ना। लेकिन रियल इंग्लिश में ये अच्छी बात है, हमें आपको ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जो इंग्लिश हम सिखा रहे हैं, जो चीज़ें हम आपको देने जा रहे हैं, वो उस अनुवाद से बिल्कुल अलग है जो आपको पिछले 27 सालों से 27 सालों से पिछले सिखाई 27 सालों से आपको सिखाया जा रहा है। तो हम जब भी सेंटेंस को बोलते कौन गया तो वेंट जरूर बोलते, गो का सेकंड फॉर्म, है ना। ये हमारी आदत में शामिल है क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया, आपकी गलती नहीं, वो उस सिस्टम की गलती है। और उसको हमने एक नाम दे दिया, काल्पनिक नाम राधा, इसलिए हम बीच बीच में राधा छाप बोलते रहते। तो जब हम राधा का नाम लेंगे तो आप वो कृष्ण वाली राधा नहीं सोचिएगा, वो एक सिस्टम को मैंने काल्पनिक नाम दे दिया। अब सेंटेंस यहाँ पूरा लिखा आ जाता है खट से, किसी कोई भी डिस्कनेक्ट होता है सेंटेंस लिखा आ जाता है। शिवांग लेफ्ट, निधि लेफ्ट, रोशनी लेफ्ट। और उसके बाद जब वो दोबारा आ जाता है तब क्या लिखा आता है, किसने ध्यान दिया बताओ। शिवांग joined, रोशनी joined। यस। अब देखो, अपन बोलेंगे अरे शिवांग आ गया, तो अपन जरूर कम लगाएंगे तो अब वो चल के तो नहीं आया है। तो चलिए एक राउंड फिर से शुरू करते हैं, नम्रता से शुरू करते हैं। नम्रता, हु जस्ट जॉइंड द क्लास? सर, यू जस्ट जॉइंड द क्लास। वेरी नाइस। अभी अभी कौन आया? सर, अभी अभी आप आए। काल्पनिक सब्जेक्ट रखिए, आप काल्पनिक रखिए। अब मैं आपको काल्पनिक रखवाता हूँ। इस क्लास के जितने लोग हैं उसका नाम कोई भी नहीं रखेगा, नहीं तो उसको कितने का दंड मिलेगा? 3 का। हाँ, सब काल्पनिक नाम रखिए। आगे बढ़िए। निधि, हु जस्ट जॉइंड द क्लास? My neighbor just joined the class। निधि, अभी अभी क्लास में कौन आया? नम्रता मेरी पड़ोसन आई अभी अभी क्लास में रोशनी, who just joined the class। He just joined the class। रोशनी, अभी अभी क्लास में कौन आया है? वह अभी अभी क्लास में आई है। सॉरी फॉर हिंदी। सॉरी। बेटा तुमने ही बोला था ना, उसमें लिखा तो ही आया था। अभी तो किसको कहते हैं बताओ, यहाँ ही कितने हैं अपनी पूरी क्लास में, बता सकती हो? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अब हम इस पे गेम खेलते हैं, बहुत प्यारा गेम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अनीता जी मौजूद हैं तो हेलो या हाय या यस बोलें। यस। हाँ, इससे क्या होता है, जो भी पीछे होता है स्क्रीन में वो सामने आ जाता है, तो वो मुझे दिखने लगता है। अभी आपने देखा अनीता जी, वास्तव में इस क्लास की जो प्रोसेस है उसमें जो एंजॉय करता है वो बहुत जल्दी इंग्लिश बोलने लगता है, और जो स्ट्रेस लेता है, जैसा कि हम बरसों से अपने बच्चों पर स्ट्रेस दे रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं कुछ कठोर बातें करता हूँ इस सिस्टम के विरोध में, लेकिन उससे आपको सहमत होना जरूरी नहीं है।
कि हम उनका बचपन छीन लेते हैं, उनकी खुशी छीन लेते हैं, पढ़ो 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 करके। और मेरा जब ये मैं कहता हूँ तो पढ़ाई से विरोध नहीं है, लेकिन अगर आप, मेरा मानना है, देखिए, अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं और आप अगर बेगार टाल रहे हैं, किसी ने जबरदस्ती बोला, मम्मी ने बोला या पापा ने बोला आप ध्यान दीजिए, तो वो बंदा जो है उस काम को अनमने ढंग से करेगा और उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं आएंगे। आप ये चीज महसूस करते होंगे। और जब वो उस काम को मन से खुद से करेगा, एंजॉय करते हुए करेगा, तो वो बहुत अच्छे परिणाम देगा। ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। तो अभी जब नम्रता ने निधि से पूछा तो आपने देखा निधि ने कितना खिलखिला के जवाब दिया। निधि इस क्लास में फिजिकली आ चुकी है तो वो जानती है प्रोसेस कि अभी मेरे पड़ोसन कितने बढ़िया तरीके से, उसने ऐसा लग नहीं रहा था कि कहीं वो सेंटेंस बोल रही है और बहुत स्ट्रेस्ड है और वो ग्रामर और ब्ला ब्ला ब्ला। नो नो नो, शी वॉज एंजॉइंग डांस। अब देखिए रोशनी ने क्या किया, स्ट्रेस लेके जवाब दिया, तो उसका जवाब गलत हो गया। कोई बात नहीं, अब पहले हम उसी को ठीक कर लेते हैं। अब मैं पूरा राउंड खेल रहा हूँ। मुझे यहाँ पे अनीता जी विजिबल है, रोशनी इज विजिबल, नम्रता इज नॉट विजिबल, निधि इज विजिबल एंड नेहा इज विजिबल। अब मैं एक एक का नाम पुकारूंगा और उसको संबोधन दूंगा। इससे आपकी ग्रामर भी सही हो जाएगी और आपको कुछ रटना भी नहीं पड़ेगा। देखिएगा कैसे। नम्रता, यू आर शी, आई एम ही। Nidhi is she, but Nidhi's son is he. He's peeping, you can see. Hello, beta. Hello. फिर चला गया। Okay. He left. अब देखो निधि तो चाहती है, अभी तो बोल सकती थी सर ही लेफ्ट, बस पूरा हो जाता। नेहा, यू आर शी एंड हु इज शी? लो अपना नाम बताओ। हेलो बच्चे लोग, टेल मी योर नेम्स। बच्चे अपने नाम बताओ। My name is Vaidehi Patel. My name is Pamni Patel. वैदेही is she and your name again बेटा? छोटी छोटी वाली Pamni ने Patel. कम अगेन। Pamni Patel. और ये अच्छी Bunny. वाली कम अगेन। तुम बता दो बेटा नेहा। I am Bunny Pamni. Patel, sir. सर पावनी पटेल। पावनी पावनी पावनी। So she is Pavni and she is a girl. Neha, you are a girl, you are she. Roshni, you are a lady, you are she. Anita ji, you are a lady, you are she. I am he. अब नम्रता तुम शुरू करो, सबको संबोधित करो। Sir, you are he. Anita ji, you are lady, you are she. Nidhi, you are housewife, you are she. Neha, you are a student, you are she. Roshni, you are she. Sivang is he. And Nisha is she. Deepika is also she. And I think nobody rest. Okay, Nidhi, you are ready? Yeah, Namita, I'm ready. Namita, you are C. Anita ji, you are C. And Neha also C. Neha's oh, क्या बोलते हैं, वैदेही and Pavni is also C. बेटा यू नो और अपन हिंदी का प्रयोग कर लेते हैं ना, तो नेहा, भतीजिया एंड भांजिया आरसी ऐसा बोलो, अच्छा लगेगा। okay, so Neha's sister's daughter are C.
Roshni, you are C and your kid is he. And I am also C. My kid is he. Uh, there's Roshni. Neha, you are C. Namrata Didi, you are C. Nidhi Didi, you are housewife C. Nidhi Didi, Sorry. Okay. Okay, Roshni, it will do, भैया. Nidhi Didi's son he. Nidhi Didi's husband he. Sorry Nidhi Didi. बेटा तुम लोग सिस्टर्स हो तो तुम ऐसा बोल सकती थी ना, माय जीजा जी इज ही। जिया जी नहीं है सर वो। You can say Jeetchi. You can say. जेठ जी थे वो। जो भी है वो बोलो उनको। ब्रदर इन लॉ। अरे यार बहुत अच्छी बात है, सब लोग सुन लीजिए। अंग्रेजी में एक और कांटा है, आज निकाल देते हैं बच्चे। अगर आप चाहोगे तो हम आपको पूरी लिस्ट भेज देंगे कि किस संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन जो स्नेह, जो अपनापन भारतीय रिश्तों के नाम में है, वो क्या आपको अंग्रेजी नामों में मिलेगा बेटा? नहीं मिलेगा। और जो क्लियरिटी है हमारे नामों में, वो क्या आपको अंग्रेजी नामों में मिलेगी? उनके यहाँ तो सिस्टर इन लॉ मालूम किस किस को बोलते हैं? बहू को भी सिस्टर इन लॉ, सर बहन को, साली को। साली को भी सिस्टर इन लॉ, भाभी को भी रोशनी सिस्टर इन लॉ। बहन को नहीं बोलते, बहन को नहीं केवल बहन सिस्टर ही ननद को बोलते हैं। बोलते हैं, ननद को मतलब बोलते हैं, हस्बैंड की बहन को। ननद को बोलते हैं। जेठानी को सिस्टर इन लॉ, देवरानी को सिस्टर इन लॉ, ननद को सिस्टर इन लॉ। अब अपन कैसे समझेंगे कि वो देवरानी है, कि वो जेठानी है, कि वो ननद है? तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश आप सीख तो जरूर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको इंग्लिश कहाँ बोलना है? अपने घर में सबसे पहले, परिवार में, फिर अपने मोहल्ले में। तो आपके मोहल्ले में अगर आप किसी से बात करोगे और बोलोगे शी इज माय भाभी जी, he can understand easily, and she is my सरहज। अब सरहज से, वैसे मैं रिश्तों में थोड़ा कमजोर हूँ दोस्तों, मैं साफ साफ बता दूं, हिंदी रिश्तों में मैं थोड़ा कमजोर हूँ, लेकिन सरहज शब्द मैंने सुना है। तो आप किसी से बोलोगे शी इज माय सरहज, ओके। और अगर आप किसी से बोलोगे निधि कि शी इज माय जेठानी एंड शी इज माय देवरानी, क्लियर? तो फिर वो पूछेगा एंड वेयर इज योर नंद, तो आप बोलोगी शी इज एट होम या शी इज इन इंदौर, काल्पनिक अंश। तो कितने खूबसूरत रिश्ते हैं, तो आप सीधे उसका नाम लीजिए ना। चलिए आगे बढ़िए। अब हम एक ऐसा सेंटेंस पूछने वाले हैं, पहले अगर नहीं पूछा हो तो बता देना। हुज गो इज दिस? समझ में आया बेटा? Yes, sir. क्या? I am go with this. नहीं आया बेटा। निधि तुम्हारे लिए भी नया है ना ये? नहीं आया समझ में? हमारे बोलने से आ गया होगा, वैसे जो चल रहा हमने उसी से रिलेटेड पूछा है। कौन चला गया? ये देखो, गो मतलब जाना, ऐसा यहाँ ठूस दिया गया है। किसकी बारी चल रही थी सर? यस यस यस, एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू। अब अभी तक आप क्या बोलते थे? हुज टर्न इज दिस, या हुज चांस इज दिस।
आज आप एक नई बढ़िया सी चीज सीख रहे हैं। शायद नम्रता तुम्हारे लिए भी बिल्कुल नई है बेटा, है राइट। गो को हम 27 साल से क्रिया के रूप में जानते हैं। आप अभी जाना डिक्शनरी में, और नहीं तो मैं चित्र खींच के भेज दूंगा, या आप गूगल कर लेना। और ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना, तो ये लोग आपस में खेलते समय बोलते हैं, नो नो इट इज पप्पूज गो, नो नो इट इज माय गो, नो नो इट इज योर गो। किसकी चांस है? मेरी चांस है। नहीं पप्पू की चांस है। नहीं मेरी चांस है। नहीं तुम्हारी चांस है। ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में ये लोग, आप सीरियल में सुन लेना। और यहाँ स्पेलिंग गूगल अलग ले रहा है, हम आपको बता देते हैं। WHOSE, whose, GO, go, is, this, या ऑब्लिक इट। whose go is this। अब गूगल ले रहा है, देखिए आपका सीसी ऑन है कि नहीं, कर लीजिए। whose go is this। अगर बच्चों ये वाक्य गलत होता तो गूगल नहीं लेता, नहीं लेता। ये गलत इंग्लिश नहीं लेता। जब हम हिंदी बोलते हैं ना तो देखो चुप हो जाता है, या तो कुछ का उटपटा टाइप करता है, या बिल्कुल शांत हो जाता है। तो गूगल कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली। नाउ यू कैन सी Google is typing everything nicely, correctly। तो whose go is this? सर निशा गोज। अब इसका आंसर कैसे देते हैं वो भी सीख लो, पहले इसी को खेल लेते हैं। दिस इज निशा's go, दिस इज हर go, दिस इज his go, दिस इज my go, दिस इज your go। चलो काल्पनिक उत्तर देना है ना। नम्रता से शुरू करते हैं। नम्रता, whose go is this? सर निधि इज गो दिस। नहीं बेटा, जहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है वहां से आंसर शुरू होगा। निधि देखो, इज whose go is this? दिस गो इज This is निधि गो। निधि's go, अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा बेटा। दिस इज निधिज गो। यस, ये किसकी बारी है? यह निधि की बारी है। आगे बढ़ा। निधि, whose go is this? नम्रता, it's रोशनी's go। रोशनी, निधि बेटा तुमने एस हम लगा किसकी दिया, बारी? go से नहीं होता, वो go से होता। It's yes sir, it's रोशनी's go। निधि किसकी बारी है? नम्रता, ये रोशनी की बारी है। रोशनी, whose go is। बेटा पहले थोड़ा अनीता जी से तुम पूछ लिया करो, तुम लोग आपस के एक दूसरे से रिलेटेड हो तो तुम लोग की जुबान पे उसी का नाम आता है। पहले अनीता जी से एक बार पूछ लिया करो। ओके सर, ठीक है। अनीता जी, whose go is this? This is कल्पना मैम गो। निधि कोई बात नहीं, अब रोशनी से पूछ लो। रोशनी नेहा से पूछेगी, नेहा अनीता जी से पूछ लेंगी तो उनको 2 बार 3 बार और सुनने मिल जाएगा। रोशनी, whose go is this? This is Neha's go. गुड। रोशनी किसकी बारी है? नेहा की बारी है। नेहा, whose go is this? चलो हम Sorry. लिख देते। Whose go is this? Go is this. सही बोला। Neha, कम अगेन रोशनी। Neha, whose go is this? Good morning, Neha.
This is my auntie's go. नेहा किसकी चांस है? मेरी आंटी की चांस है। अनीता जी, अनीता जी, whose go whose go is this? Sorry, Neha, looking London, talking Tokyo. अनीता जी, Neha is there. whose go is this? बेटा Whose? हमारे साथ बोलना एक बार। हाँ मैं बड़ी हूँ की मात्रा हाँ मैं बड़ी की मात्रा हूँ, बड़ू जा छोटो जा, छोटो जा, नीचे नुक्ता, नीचे नुक्ता, नीचे ता, हुज, whose हुज, whose yes, sir. Whose go is this? Anita ji, whose go is this? This is go अनीता Neha. जी प्लीज कैन यू स्पीक अप? This is go अनीता जी Namrata. कैन यू प्लीज स्पीक अप एंड क्लियर? कैन यू स्पीक अप? This is Namrata's go. किसकी नम्रता की चांस है? सॉरी, कीप पेशेंस, Keep सॉफ्ट patience, फायर please. मेक्स स्वीट माल्ट। ये मिला है बच्चों तुम लोग को इडियम? नम्रता, सॉफ्ट फायर मेक्स अ स्वीट माल्ट। नहीं सर, मिला नहीं है लेकिन लिखा हुआ है। धीरज का फल मीठा होता है। अनीता जी, किसकी बारी है? बेटा ऐसा नहीं, रॉन्ठाई नहीं करो। फिर से इंग्लिश पूछो, वो फिर से इंग्लिश में जवाब देंगी। फिर कंप्लीट द प्रोसेस करो, वो Okay. कंप्लीट द प्रोसेस करेंगे, है ना? Okay, sir. Neha, I will not do. Anita ji, whose go is this? मैं कुर्सी देना नहीं मुझे मासी। आई हैव डन। फिर से रिपीट करो। बेटा इतनी देर के लिए म्यूट कर लिया करो, बच्चों को मौसी मौसा कर लेने दो। हाँ अनीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटा नेहा, कैन यू आस्क मी? Sir, whose go is this? दिस इज माई गो। सर किसकी बारी है? मेरी बारी है। थैंक यू सर। वेलकम। रोशनी, नया उत्तर देना बेटा। हुज गो इज दिस? दिस इज माई गो। ये तो पुराना हो गया। 3 का दंड दो, हमने माय बोला भी। 3 का दंड नहीं दो, नहीं ऐसा नहीं, रॉन्ठाई नहीं। बेटा इससे अनीता जी को पता चल जाएगा कि 3 का दंड कैसे देते हैं ना। ओके सर। सर मैं भूल गई थी। A little our little knowledge is dangerous. अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। और that is means अर्थात। और it is raining cats and dog. मूसलाधार बारिश हो रही है। हुज गो इज दिस रोशनी? शिवांक, दिस इज शिवांक गो। किसकी बारी है? शिवांक की बारी है। नम्रता, हुज गो इज दिस? सर दिस इज सचिन तेंदुलकर गो।
एस लगाया कि नहीं अपॉस्ट्रोफी? दिस इज सचिन तेंदुलकर्स गो। किसकी बारी है? सर सचिन तेंदुलकर की बारी है। थैंक यू। अनीता जी, whose go is this? चलो तुम हमसे पूछ लो नम्रता, हम एक और नया उत्तर देते हैं। निधि, तुम नया उत्तर देने के लिए तैयार हो बेटा? Yes, sir, I'm ready. निधि से पूछ। निधि, whose go is this? No, Namrata. It is not Tendulkar's goes. It is Mahendra Singh Dhoni's go. निधि, किसकी बारी है? नहीं नम्रता, ये तेंदुलकर की बारी नहीं है, ये तो महेंद्र सिंह धोनी की बारी है। Who is ready for answer? I am ready for new answer. Sir, whose go is this? This is his go. सर ये किसकी बारी है? ये उसकी बारी है। सरल सा उत्तर। अब कौन तैयार है नया लेकिन सरल उत्तर देने के लिए? Who is ready? Please unmute yourself. आई एम रेडी। हाँ, मुझे नम्रता की आवाज सुनाई दी केवल। नम्रता, whose go is this? सर दिस इज हर गो। Yes. ये किसकी बारी है? सर यह है उसकी बारी है। ओके। अब नम्रता पूछो, who is ready? हु इज रेडी? I'm ready. Wow. नेहा, whose go is this? Whose go is this? This is we. This is Sorry. this is Dr. Ambedkar's go. नेहा, किसकी बारी है? डॉक्टर अम्बेडकर की बारी है। रोशन दी, ये राउंड में आप सीधे नाम मत लीजिए, जो तैयार Who हो। is rest? रेस्ट तो कोई नहीं है। Who is ready? I am ready. I am ready. I am ready. Whose go is this? तो तुम ये हर बार हुस बोलने से पहले हु इस क्यों पूछती हो बेटा? तो सर एकदम से वो आ जाता है। तो एकदम से मत पूछा करो, पूरे दम से पूछा। सर सर whose go is this? This is our go. सर किसकी बारी है? अपनी बारी है। Who is ready? एक और बचा। निधि को पता है, नम्रता को सोचना पड़ेगा। चलो हमऊ से पूछ लो जिसकी इच्छा। Sir, whose go is this? This is their go. Yeah, you have spoken out of my mouth. सर ये किसकी बारी है? सोच ही रही थी। Oh, you got late to सोच। ये उनकी बारी है, वो 3-4 लोग जो खड़े, बहुवचन। चलो यहाँ इसको तो विराम देते हैं, क्लास को दे विराम कि कुछ इंटरेक्टिविटी हम दे दें। What do you Okay, say? sir, please give. Yes, sir. Give us. Okay. So can you tell me what was the last interactive sentence?
The last interactive sentence was let's dance on the floor. That is, चलो जमीन पर डांस करते हैं. गो अहेड लिखवा दिया है बच्चे, गो अहेड दिया है नहीं. अब जैसे ही हमने बोला तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आया था, पढ़ा? Did you read? What is the spelling and what is the meaning? Is it visible? Yes, Yes, sir, it is visible. that's clearly visible. Namrata, can you guess the meaning? Yes, sir. Go ahead. आगे बढ़िए. That is, आगे बढ़िए. अब ये तो अपन ने अच्छे से अनुवाद किया बेटा, है ना? देखो शायद नेहा को याद कर. बेटा नेहा, तुम्हें उस दौरान क्लास में ये वाला मिला? No, sir. अच्छा निधि, डू यू रिमेम्बर बेटा? Sir, I didn't write, but I guess go ahead. That is सामने देखिए, सामने देखो. तो मतलब तुम्हें भी याद नहीं है या मिला नहीं? चलो अब Yes, अब चौंकने की बारी है. अब तुम लोग को जोर का झटका कैसे लगेगा पता? क्या मुहावरा है जोर का झटका? धीरे से. हाँ, लेकिन इस बार लगेगा जोर से. चलो नम्रता, जैसा लिखा है वैसा बोलो. Go ahead. That is, ठीक है तो कर दीजिए. निधि. Go ahead. That is ठीक है तो कर दीजिए. आगे बढ़ो. रोशनी. Go ahead. ठीक है तो कर दीजिए. आगे बढ़ो. अनीता जी. चलो अब हम इसको बताते हैं आपको. अनीता जी अपने काम में लग गई होंगी. अब हम जो उदाहरण देने जा रहे हैं वो इस हिंदी से भी परे चले जाएंगे. जैसे मान लो निधि ने पूछा, सर कैन आई मेक वन मोर सेंटेंस? तो हम बोलेंगे ओके गो अहेड. अब बताओ यहाँ हिंदी क्या होगा? ठीक है तो कर दीजिए या बोल दीजिए. ठीक है आगे बढ़ो. आगे बढ़ो. वो तो कैसे लगेगा? ठीक है तो बोलो. आगे. देखो निधि ने पूछा, सर कैन आई मेक वन मोर सेंटेंस? तो हम बोलेंगे ओके गो अहेड. ठीक है बनाओ. ठीक है तो बना लीजिए. एब्सोल्युटली राइट. ठीक है तो बना लो. अब मान लो शिवांग ने पूछा, सर कैन आई गो टू टॉयलेट? तो हम बोलेंगे ओके गो अहेड. क्या मतलब है? ठीक है तो चले जाइए. वेरी गुड. अब किसी ने पूछा, सर कैन आई सिट देयर? हम बोलेंगे ओके गो अहेड. क्या मतलब होगा? नेहा बताएगी, इस बार अभी तक चुप थी. ठीक है बैठ जाइए. वेरी नाइस. ठीक है तो बैठ जाइए. इसका तात्पर्य बच्चों ये है कि हर बार
हम इस सेंटेंस का प्रयोग किसी को अनुमति देने के लिए, आई एम परमिटिंग somebody to do what he or she wants. I am permitting to do what he or she wants. This is for permission. अब चलो कुछ कुछ इसी को कर लेते हैं, सीधे सीधे नहीं बुलवाते हैं। अब मैं नम्रता से क्वेश्चन पूछता हूँ। नम्रता, तो मैं उत्तर यही देना है। नम्रता, कैन आई सिंग वन सॉन्ग? Yes, sir. Go ahead. नम्रता, क्या मैं एक गाना गा सकता हूँ? हाँ सर, गा सकते हैं, गाइए। हाँ हाँ सर, सर, गाइए। हाँ, यस सर, वेरी गुड। अब तुम कुछ वर्ब बदलो और निधि से पूछो। निधि, कैन आई स्पीक मराठी? Okay, Namrata, go ahead. निधि, क्या मैं मराठी बोल सकती हूँ? हाँ नम्रता, बोल लीजिए। नेहा, can I make one more sentence? Okay, Nidhi, go ahead. नेहा, क्या मैं एक Come again, Nidhi. नेटवर्क, शी लॉस्ट, शी लेफ्ट। चलो तुम पूछ लो रोशनी से जब तक। Roshni Di, can I make dosa? Go ahead. रोशनी, क्या मैं डोसा बना सकती हूँ? बना लूं? ठीक है, बना लो। अनीता जी, कैन आई ड्राइव अ कार? नहीं है अनीता नहीं जी। होगी, वो सर, केवल दिख रही हैं, वो है नहीं वहाँ। अच्छा हमसे पूछ लो। सर, कैन आई ड्राइव अ कार? यस, गो अहेड, यू कैन ड्राइव बिकॉज यू नो ड्राइविंग। सर, मैं एक कार चला लूं? हाँ, चला लो ना। तुम तो कार चला लेती हो, तुम्हें तो ड्राइविंग आती है। अब एक बहुत मजेदार राउंड सर, खेलते हैं, बट बाद एक में कार। देखो। हाँ ठीक हो बेटा, देखो आदत है ना इन लोग की, ये हिंदी मीडियम वाले 27 साल से ए लगाने की आदत है, याद करो। मोहन जब भी लिखता था एक पत्र लिखता था, याद करो। सीता जब भी गाना गाती थी एक गाना गाती थी। एक राम जब भी आम खाता था, 27 साल तक एक ही आम खाया है ना। राम इज eating mango, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता इज प्लेइंग बैडमिंटन, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। वो आदत सर, है बेटा। रोशनी ड्राइव आ कार, एक ही हाँ, कार चलाएगी रोशनी। वो एक ही कार चलाएगी, तो हमने भी उसको एक ही कार चलाने दी, चलाओ बेटा। और सीधी बात है ना यार, देखो तुम उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझी। निधि रोशनी 2 कार कैसे चलाएगी? स्टंटमैन तो है नहीं, मुंबई फिल्म की। सिंघम भी नहीं है जो दोनों कारों पे एकदम पैर रख के चला लेता है ना। अब दूसरा राउंड फटाफट खेल के खत्म करते हैं। व्हाट शुड आई डू दिया था तुम लोग को, बेंच में नहीं दिया। व्हाट शुड आई डू इंटरेक्टिव। नो सर। अरे दिया हो सर, दे चुके हैं शायद, मैं क्लास में नहीं थी, बट यू हैव गिवन। अब इसका प्रैक्टिकल प्रयोग देखो। तो हम इस बार निधि से शुरू करते हैं। निधि, तुम नम्रता का नाम लेना। निधि, शुड आई टेक वन मोर समोसा? यही आंसर कर। Yes, sir. Go ahead. You should. नहीं You बस should रुको, have. बस नहीं नहीं, बस 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 बस। Okay. 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 निधि, मैं एक और समोसा ले लूं? हाँ सर, ले लीजिए। नम्रता, should I erase this sentence? यस निधि, गो अहेड। नम्रता, क्या मैं ये मिटा दूँ वाक्य?
हाँ निधि, मिटा दीजिए। रोशनी, should I write a letter? Come again, Namrata. Roshni, should we write a letter? So, Namrata, you are Mohan and Radha's listed. A नहीं letter. बेटा, नम्रता Let बी me सब्जेक्ट try. भी लगा रही है, 2 गलतियां कर रही है। ये सबसे ज्यादा आई के साथ फिट होता है। Roshni, should I go? Sir, I think it is right. Roshni, Go should ahead. I go? Go ahead. Go ahead. Okay. रोशनी, क्या मैं जाऊं? ठीक है, आप जाइए। नेहा, can I play football? Sorry. सुनती नहीं हो बेटा। If You you did want to not be a listen good carefully. speaker, you must be a good listener. If you want to be a good speaker, you must be a good listener. तुम्हारी बारी तीसरे नंबर पे आई। सबसे पहले मैंने निधि से पूछा, निधि ने नम्रता ने तुमसे पूछा। चलो नम्रता, एक नया सेंटेंस बना के नेहा से पूछ लो, वो बेचारी वेट कर रही है, देखो दरवाजे के पास बैठी। नेहा, should I teach? Okay, go ahead. नेहा, क्या मैं पढ़ाऊं? हाँ, पढ़ा लीजिए। Neha, why are you sighing? Neha, why are you sighing? प्रैक्टिकल नम्रता, तुम्हारे सेंटेंस अभी वो प्रैक्टिकल सेंटेंस बनते नहीं है, तुम वर्ब उठा लेती हो कोई सी भी। Actually, practice makes a man perfect. हाँ गजब यार, क्या बात है। नाम क्या है नेहा तुम्हारा? हम नेहा पटेल। चलो तुम हमसे पूछ लो बेटा। Sir, should I comprehend? व्हाट? या कुछ लगाना पड़ेगा ना, क्रियाएं दो प्रकार। Okay, should I comprehend, sir? Should I comprehend this sentence? Yes, you can comprehend this. Go ahead. सर, मैं सेंटेंस आत्मसात कर सकती हूँ? कर लो। Sorry. कर लूँ? हाँ, Yes, sir. कल्लू को याद रखो रोशनी, कल्लू को याद रखो। कर लो। Okay, But sir. now it is enough for today. Okay, sir. Should we play one more round? As you wish, sir. क्या अपन एक और राउंड खेलें? Okay, sir. सर, आप लो शुरू कर दिया हमने राउंड। चलो उससे पूछ लेते हैं निधि। निधि, should I start second round? Okay, sir. Go ahead. निधि, क्या मैं दूसरा राउंड चालू करूं? हाँ सर, कीजिए। थैंक यू। नम्रता, should I make dinner? Yes, निधि, go ahead. नम्रता, क्या मैं डिनर बनाऊं? हाँ निधि, बनाइए, आते हैं फिर रात में खाने। रोशनी, should I make one more chapati? Sorry, 3D. I used make. Okay, verb change करना. Sorry, I forgot.
Sir, you're mute. Rosni, should I click one more picture? Yes, you should click one more picture. अरे राम राम राम, मेरे से पूछ ले भाई। Go ahead. Sorry. नम्रता, ask me. Sir, should I click one more picture? This one? Yes, sir. That Go one. ahead. Go ahead. Go ahead. Complete the सर first. क्या मैं एक और पिक्चर क्लिक कर लूं? ये वाली? हाँ सर, वही वाली। हाँ, कर लो, ले लो। रोशनी, should I make गाजर का हलवा? You are repeating verb 3D. अब यहाँ वर्ब पे हमने प्रतिबंध एक्चुअली बच्चों लगाया ही नहीं है। हम चाह रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान दें। वर्ब, जब हम वर्ब के नीचे क्रॉस कर देते हैं तो वर्ब रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन अब रोशनी से इतना प्रैक्टिकल सेंटेंस पूछा है हमने, इसलिए तुम्हें भी हमने, उस समय हम म्यूट थे, हमने तुम्हें दंड नहीं दिया था, हमने बोला था नहीं चलने तो अच्छा सेंटेंस बना, लेकिन तब तक तुमने बदल दिया था, हम म्यूट में थे तो सुन नहीं पाए थे। तो रोशनी, should I make गाजर का हलवा? नेहा, should I make गाजर का हलवा? Yes, sir. Go ahead. नेहा, गाजर का हलवा बनाओ? हाँ सर, आप बना लीजिए। निधि दीदी। हाँ निधि। निधि दीदी, should I watch South Indian movie? Okay, Neha, go ahead. निधि दीदी, मैं साउथ इंडियन मूवी देख लूं? हाँ नेहा, देख लो, ज्यादा रात तक नहीं बट। निधि, I think रोशनी left or her data is over. So, guys, should we conclude the class? ओके सर, कल से Yes, sir. 7 बजे से रख ले क्या क्लास? नम्रता बताइए ना, 7 बजे से ना? ठीक है, आई एम बताइए। कंफर्टेबल। नेहा, are you comfortable? Yes, sir. मैसेज डाल देते हैं हम ग्रुप में 7। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नवरात्रि की छुट्टी वगैरह तो नहीं चाहिए? नो सर। No, sir. थैंक Sir. यू। Okay. Thank you.